سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کالعدم تنظیم داعش خراسان کی ملتان میں دہشت گردی کی سازش ناکام، سی ڈی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 ساتھی فرار۔ ترجمان سی ڈی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں رضوان اور عمران ساکی کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ، نقشے اور رقم برآمد کر لی گئی ہیں۔ تاہم مارے گئے دہشت گردوں کے 3 ساتھی فرار ہو گئے ہیں۔ سی ڈی ڈی ترجمان کے مطابق دونوں دہشت گرد 3 سرکاری افسران کے اغوا میں بھی ملوث تھے۔ دونوں دہشت گرد لاہور میں امریکی شہری وارن وائنسٹائن کے اغوا میں بھی ملوث تھے۔ ترجمان سی ڈی ڈی کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سمندری فیصل آباد میں کیش وین لوٹنے میں بھی ملوث تھے۔ کیش وین لوٹنے کے دوران دہشت گردوں نے تمام گارڈز کو قتل کر دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آصف زرداری اور خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پروڈکشن آرڈر قومی اسمبلی بجٹ سیشن کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پروڈکشن آرڈر قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے قاعدے 108 کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق اسپیکر نے خود خورشید شاہ کو آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی عبدالقادر پٹیل، شازیہ مری، شگفتہ جمانی اور آغا رفیق پروڈکشن آرڈر کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود رہے۔ خورشید شاہ نے آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیر آید درست آید۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری آج صبح قومی اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو نے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو اور آصفہ کی آصف زرداری سے نیب راولپنڈی میں تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات جاری رہی۔ نیب حکام کے مطابق چیئرمین نیب نے آصف زرداری کے بچوں کو ان سے کسی بھی دن ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیئرمین نیب نے ہدایات کی ہیں کہ آصف زرداری کو ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پروڈکشن آرڈر ہر رکن اسمبلی کا حق ہے، ملزم اور مجرم میں فرق کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا پروڈکشن آرڈر کو بجٹ سے نہ جوڑا جائے، بجٹ کی منظوری روکنے پر ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ پروڈکشن آرڈر ہر رکن اسمبلی کا حق ہے اور ملزم اور مجرم میں فرق کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، یہ ان کا آئینی حق ہے ایک ممبر کا جب تک وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے۔ ابھی ایک ملزم ہے اور ملزم اور مجرم میں فرق پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پہلے ایشو ہونے چاہیے تھے۔ یہ ہمیشہ اپوزیشن کو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیٹرن ہے کہ بہت زیادہ منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنی تھی جو اسپیکر کے دفتر میں ہوئی، کیونکہ ہم نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم آپ نہ تقریر کرنے دیں لیکن ہم تقریر بھی کریں گے اور اس عوام دشمن بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ پروڈکشن آرڈر کو اور بجٹ پاس ہونے کو بالکل الگ رکھا جائے۔ جو بجٹ کا پاس ہونا ہے وہ عوام کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوگا۔ یہ بجٹ، اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا شہباز شریف نے۔ یہ پروڈکشن آرڈر سے لنکس نہیں ہے۔ یہ اصل میں بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ یہ آئی ایم ایف نے بنایا، یہ کنڈیشنالٹیز کے اوپر بیس بجٹ ہے جس کے اوپر سینٹ کی کوئی ریکمنڈیشن بھی یہ گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ۔ 3 بار قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرنے میں ناکام رہنے والے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بالآخر آج اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ آج انہوں نے وفاقی بجٹ واپس لینے اور عوامی خواہشات کے مطابق نیا بجٹ لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو میثاق معیشت کی پیشکش کی جو ٹھکرا دی گئی۔ عمران خان کہتے تھے چیخیں نکال دیں گے، واقعی 10 ماہ میں عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ کنٹینر پر عمران خان نے کہا تھا کہ ٹیکس ہدف پورا نہ ہوا تو اس وقت کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ آج ان کے اپنے ٹیکس ٹارگٹ میں 500 ارب روپے کی کمی آئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ کوئی لفظ تجویز نہیں کریں گے، عمران خان خود فیصلہ کر لیں۔
यहाँ एक बार फिर आपको अपडेट करें, मुल्तान में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बनाए जाने से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबर यह है कि हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। कलदम तंजीम दाइश खुरासान की मुल्तान में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम और CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 साथी फरार हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों रिजवान और इमरान साकी का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा, नक्शे और रकम बरामद कर ली गई। ताहम मारे गए दहशतगर्दों के 3 साथी फरार हो गए हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक दोनों दहशतगर्द 3 सरकारी अफसरान के अगवा में भी मुलव्विस थे। दोनों दहशतगर्द लाहौर में अमरीकी शहरी वॉरेन वाइनस्टीन के अगवा में भी मुलव्विस थे। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द समंदरी फैसलाबाद में कैश वैन लूटने में भी मुलव्विस थे। कैश वैन लूटने के दौरान दहशतगर्दों ने तमाम गार्ड्स को कत्ल कर दिया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर की तकरीर 45 मिनट तक महदूद करने की तजवीज़ पेश कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सुबह से खिताब कर रहे हैं, कुछ काम का नहीं बोल रहे, कौमी असम्बली के वक्त और टैक्स गुजारों की रकम का ज़िया हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में जब ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल नहीं बनाया गया, तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वजाहत की कि सवाबी में 2 यूनिवर्सिटियां और अस्पताल बनाए गए हैं। इन्होंने 2013 से लेकर 18 तक KPK में एक नई यूनिवर्सिटी और एक नया अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ सर। इसमें सबसे पहले ये कि मैं सिर्फ इसलिए आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ ताकि आपके नोटिस में हो, अगर कोई आपकी गलत इंफॉर्मेशन हो तो आपको ठीक हो। हमने खुद नहीं, मैं क्योंकि उधर इसके तो इंफॉर्मेशन दे दूँ, 7 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, अगर आप मैं गिन के आपको मैं अपने उसे कर सकता हूँ। और दूसरी दफ़ा ये कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ सवाबी में 2 यूनिवर्सिटी बनाई, एक वुमेन यूनिवर्सिटी और एक और जो अस्पताल है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। और मैं आपकी बात मैं सिर्फ जस्ट मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी इख्तिलाफात के बावजूद आईनी और जमहूरी हक के लिए बोलने पर MQM की तारीफ की, जिन्होंने ऐवान में साबिक सदर जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा किया था। जैसे कि पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, कराची के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन मेरा MQM दोस्तों के लिए मैं खुश हूँ कि उनके पास एक एक्स्ट्रा वज़ारत है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा दौर में अपोजिशन का एहतसाब नैब नहीं बल्कि हम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमने कौम से वादा किया था कि हम एहतसाब करेंगे। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रही है या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ नैब यही कर रही है। कहते रहे ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया है। लेकिन जरदारी साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था? गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने इस मुल्क में करप्शन खिलाफ बयानिया बनाया, PTI एहतसाब का कल्चर लेकर आई। उन्होंने कहा कि इदारे तो पहले भी थे लेकिन करप्शन को बुराई कोई समझता ही नहीं था। फैसलाबाद में शादी की तकरीब में नाखुशगवार वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। फैसलाबाद में शादी की तकरीब में नाखुशगवार वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में वफाकी वजीर फवाद चौधरी को तेज़ी से आगे बढ़ते और हाथ उठाते देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी को कुछ लोगों ने दूर हटाया। इस नाखुशगवार वाक़े के फौरी बाद फवाद चौधरी तकरीब से चले गए थे। याद रहे कि कुछ रोज़ पहले फवाद चौधरी और निजी चैनल के एंकर पर्सन के दरमियान नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक के कायम मकाम सेक्रेटरी दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इराक की तरक्की और सलामती के लिए ताउन पाकिस्तान के लिए बाइस एहसास होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने बंगाली नोबेल इनाम याफ्ता अदीब रविंद्र नाथ टैगोर का कॉल खलील जिब्रान के नाम से ट्वीट कर दिया। साथ लिखा कि खलील जिब्रान के इन अल्फाज की दानाई को समझने वाले पुरसकून ज़िंदगी गुजारने में कामयाब रहते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वतन जाकर भी पसमानदा अफराद का इलाज करना चाहिए। मुकर्ररीन ने यह बात मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब करते हुए कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम ग्लोबल नश्तरीन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन यूके के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें शैडो वज़ीर अफसर खान, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आदल, डॉक्टर खुरम सदीक, डॉक्टर नुदरत हाशमी, डॉक्टर जमात चिश्ती के अलावा डॉक्टर की फैमिली के अलावा दीगर कम्यूनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि निश्तर मेडिकल कॉलेज की टीम बरतानिया में नए आने वाले डॉक्टर्स को तालीम और तरबियत से आगाह करते हैं, बल्कि पाकिस्तान जाकर अपने तजर्बे की बुनियाद पर वर्कशॉप का एहतमाम भी करते हैं। में हमने जो सीखा है वो पाकिस्तान में भी हम एम्प्लॉय करना चाहते हैं। वहाँ पे इसी तरह का सिस्टम हो, एक हर तरह के लिए कानून बना हुआ हो सबके लिए, तो क्यों नहीं? ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम उनके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे, हम उनकी टीचिंग का इंतज़ाम करेंगे और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जिनकी पाकिस्तान में या ओवरसीज़ ट्रेनिंग का फुकतान है उसको हम पूरा करें। दैट इज़ आवर एम, टू एजुकेट एंड ट्रेन एंड कोऑपरेट विद आवर doctors over there, so in order to train our next generations. शोरका का कहना था कि जिस तरह ओल्डम अस्पताल में डॉक्टर्स की वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, ऐसी वर्कशॉप का फ्यूचर में भी इनकाद किया जाए ताकि डॉक्टर्स को मरीजों के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। The way forward would be to provide all the medication, all the treatment free of cost at the point of contact. एक तो आप को एक तरीका आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, और स्पेशली सीनियर्स के साथ। एक टोटली डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएनएच, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हमारा जो सिस्टम है एनएच तो इज़ नॉन प्राइवेट ये है, उसमें आपको फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे मुल्क में आई थिंक सो जो तिब्बी सहूलियात है वैसी नहीं है जैसे यहाँ पे हैं। We have to train the juniors, especially the juniors from abroad, from Pakistan. उम्मीद करते हैं कि जो नई हुकूमत है वो पाकिस्तान में भी इस तरह की सहूलियात ज़रूर फराहम करे। यहाँ के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो है टैक्स की अदायगी का। As I believe the younger generation of Pakistan can contribute to the society. तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। ग्रेटर मैनचेस्टर अथॉरिटी ने नस्ली अक़लियतों को पुलिस में शामिल होने की जानिब राग़िब करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। बोल्टन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बोल्टन की तारीख में पहली बार ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स ने एथनिक मिनॉरिटी के अफराद को पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में उन्होंने एक मुतारफी कैंप का इत्माम भी किया, जिसमें एथनिक मिनॉरिटी कम्युनिटी के अफराद को पुलिस फोर्स में शामिल होने की दावत दी और मालूमाती लीफलेट भी तकसीम किए, जिसका बुनियादी मकसद कम्युनिटी और पुलिस के माबेन रवाबत को बेहतर बनाना है। यह आगाही मुहिम 1 माह तक जारी रहेगी। इस मौके पर पुलिस अफसरान और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था, सुनहरी मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं और पुलिस को हमारे नौजवानों की ज़रूरत है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मैं समझता हूँ कि एशियन कम्युनिटी जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस में ज्वाइन करना चाहिए। Going really well. It's a recruitment event and we're based here in Morrison's, trying to attract people from all walks of life, especially from the black, Asian, minority ethnic groups, just so we can be more representative. अबरार हुसैन, जियो न्यूज़, बोल्टन। बरतानिया में चाकू जनी की बढ़ती वारदातों पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार किया है। मैनचेस्टर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता माह मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल का तालिब इल्म यूसुफ मक्की को छुरियों के वार से कत्ल किया गया था। कम्युनिटी की जानिब से यूसुफ मक्की की याद में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फंड की कटौती की वजह से सिक्योरिटी अदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। सर्विसेज है वर्चुअली वाइप आउट हो चुकी है। पुलिस जो इसको इन्फोर्स करती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एवरी ईयर कट्स किया गया है, तो हमें इनको रिवर्स करने की जरूरत है। Give me a lot of sense of relief knowing that his legacy will carry on. Through his office, we too are supporting young people to enable them to embrace
a tragedy like this cost a young person their life. So hopefully events such as this will raise awareness and we can help our young people keep away from crime. शोरका का कहना था कि अपने बच्चों को तालीम व तरबियत, वालिदैन, कम्युनिटी रहनुमा और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को अच्छे तरीके से परवरिश करें ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें. Raise awareness of people who have been lost to knife crime and to raise awareness of the cuts that are causing this. We have to take responsibility of our children to make sure we know, which would help the community and help the police. Like Harun just said, knife crime's on its rise and we need to do projects like this. The community need to come together. Lost his life to knife crime. It's very sad and tragic what's going on. Crime of knife control, and it's sad that what happened to Yusuf. But If we can learn something from tonight, let's have a positive message from tonight. People such as ourselves with different activities. तकरीब में मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल के साथी और तलबा और यूसुफ मक्की के वालिदैन के अलावा कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर बॉक्सिंग का मुकाबला भी कराया गया. गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज, मैनचेस्टर. मसला कश्मीर उजागर करने के लिए अब्दुल खालिक अंसारी की जिद्दोजहद को बर्मिंघम में खिराज अकीदत पेश किया गया. जियो न्यूज के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए. जम्मू कश्मीर महाजर राय शुमारी के बानी और मारूफ कश्मीरी कौम परस्त रहनुमा मरहूम अब्दुल खालिक अंसारी की सालाना बरसी की मुनासबत से बर्मिंघम में तकरीब का इनकाद किया गया. महाजर राय शुमारी बरतानिया के सदर मिर्जा मोहम्मद सिद्दीक की सदारत में होने वाली इस तकरीब में बरतानिया अब्बार से मुख्तलिफ कौम परस्त और आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की. मुकर्रीन ने मरहूम अब्दुल खालिक अंसारी की आज़ादी कश्मीर के लिए तवील जदोजहद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनके नजरिए और फलसफे पर अमल पैरा होकर ही मसला कश्मीर को हल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मरहूम न सिर्फ अपनी कौम को आज़ाद देखना चाहते थे बल्कि इनकी जदोजहद बेइंसाफी, जुल्म, तशद्दुद और समाजी खराबियों के सदेबाब के लिए भी थी. और ज़िंदगी में हर बार कश्मीर की बात की और 1953 से उन्होंने काम किया और 1965 में फिर महाजरा शुमारी को काम किया. एक ऐसी शख्सियत जिसका नमल बदल पैदा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और उनकी तमाम जदोजहद जो ज़िंदगी भर उन्होंने की उसको खराज अकीदत पेश करते हैं. अब्दुल खालिक अंसारी साहब की बरसी बनाई जा रही है और हम ये ऐद करते हैं उनकी रूह से कि हम उनकी जदोजहद, उनके नज़रिए की तकमील तक जो है वो अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे. सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहे और अपने मौक़े पर डटे रहे. इस मौके पर शुरका ने मरहूम अब्दुल खालिक अंसारी के अधूरे मिशन की तकमील के लिए मिलकर काम करने का अज़म भी किया. जबकि जिला मीरपुर में मरहूम अब्दुल खालिक अंसारी के अदारों और असासों पर कब्जों की मजम्मत भी की गई. इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम. वॉल्थम्स्टो में पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ ने बच्चों के इलाज के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम किया. जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा अली शाह की रिपोर्ट देखिए. प्रीमियर प्रॉपर्टी सेंटर ने वाल्थम्स्टो में बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल को चैरिटी के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया. मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान में भी बच्चों के इलाज के लिए हमें इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. They provide excellent service for all ill children and they have people coming in from other countries for treatments, etc. as well. For a great cause for Great Ormond Street, which helps children, for the ill children, and everybody's done amazing. May Allah reward everybody. Ormond Street is a great hospital. It provides a lot of good services to a lot of children who are in need. It's especially close to us as a result of my niece. इस मौका पर समाजी शख्सियत राजा अल्लाह दिता, काउंसलर जौहर व दीगर का कहना था कि ये एक फलाही काम है जो हम सब की जिम्मेदारी है. ये अस्पताल बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये उस पर सब लोग हमारे खुश हैं. We've seen many of our own kids in the Asian community who are the kids who have used Great Ormond Street Hospital. And it's a great way to get the community together and know about Great Ormond Street and all the great things that they do for the children. चिल्ड्रन चैरिटी इवेंट में पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज और दीगर मज़ाहब के लोग ज्यादा मुतहर्रिक नजर आए. मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन. कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के लिए वोटिंग का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया. वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की रोरी स्टुअर्ट कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ से बाहर. वज़ीर दाखिला साजिद जावेद पार्टी क़यादत के इंतखाब के अगले मरहले में पहुँच गए. साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन गुज़श्ता दो मराहिल की तरह इस मरहले में भी सबसे आगे. वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट और वज़ीर बराए माहौलियात माइकल गो भी अगले मरहले में पहुँच गए. बोरिस जॉनसन को तीसरे मरहले में 143 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल होगी. जेरेमी हंट 54, माइकल गो 51, जबकि साजिद जावेद 38 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने में कामयाब.
यूरोपियन पार्लियामेंट की पाकिस्तानी निजात रुकन शफक मोहम्मद ने कहा है कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी से ब्रसल्स में बातचीत करते हुए कही। पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बरतानिया के टिकट पर मुंतखब होकर यहाँ आए, क्या आपके इरादे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट? कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनल इशू है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रेज़ करें। सो देखिए, पहले भी मैं जो बर्मा में जो कैरन क्रिस्टियन थे उनके हवाले से भी मैं अपने शेफील्ड जो शहर है वहाँ पर उनके लिए भी आवाज़ उठाया था। वो बुद्धिस्ट जो है टिबेटन, उनके लिए भी आवाज़ उठाया था। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कश्मीर में भी मसले मसाले ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं उनके लिए भी मैं आवाज़ बनूँ, बेशक मैं कश्मीर से हूँ। ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के लिए, इंसानी हुकूक़ के मसले के लिए इस पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का इरादा रखते हैं। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रसल्स। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात का खैर मकदम किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा मुगल की रिपोर्ट देखिए। ICMAP की जानब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने टैक्स की अदायगी और इससे मुल्क को पहुँचने वाले फवायद से आगाह किया, जिसमें शैडो वजीर बराए इमिग्रेशन अफजल खान, कौंसलर नईमुल हसन, वकास चुगताई, मोहम्मद शहजाद खान, गुलाम मुस्तफ़ा, खिदर इस्लाम, अफजाल मुगल, अहमद शाह के अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा करें ताकि मुल्क की मशीयत को मजबूत किया जा सके। हाँ कि कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमें चाहिए कि जो इकोनॉमिक बेस होती है, मैनेजमेंट होती है, अकाउंटेंसी होती है, ये अपना रोल अदा करें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। जो टैक्सेस हैं ये किसी भी हुकूमत के लिए जो हैं वो एक लाइफ ब्लड हुआ करते हैं। हमने पाकिस्तान की जो इक्तिसादी कमेटी है, जो पार्लियामेंट की इक्तिसादी कमेटी है, उनसे टैक्स की रिफॉर्म्स के हवाले से ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट हैं। ऑनेस्ट हुकूमत आई है और सब लोगों को बढ़ चढ़ के नेट में आना चाहिए। शुरका का कहना था कि जिस तरह बरतानिया में टैक्स अदा करने से आवाम के फलाह व बहबूद बेहतर तरीके से अंजाम दी जा रही है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट को फ़रोग दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये फ्लरिश करेंगे। हेल्पलाइन आपकी इतनी अच्छी हो कि वो जो भी टैक्स गुजार है उसके क्वेश्चंस या जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करे। जितना टैक्स पेयर के लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे और टैक्स कलेक्शन जो है उतनी ज़्यादा आसान हो जाए। तकरीब में इस अज़म का इजहार किया गया कि ICMAP अपने टैक्स गुजार के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करेगी। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की लंदन आमद पर उनसे ताबड़तोड़ सवालात किए गए। कप्तान ने टीम में इख्तलाफात का बराह रास्त जवाब देने से इनकार कर दिया। सरफराज अहमद भारत के मैच के बाद जब मैनचेस्टर से लंदन पहुंचे तो होटल में दाखिले से कबल उनको चुभते हुए सवालात का सामना करना पड़ा। सरफराज ने इनके जवाब बराह रास्त नहीं दिए। लोग कहते हैं इख्तलाफात है टीम में, वो तो कुछ रजा भाई से पूछ लें फिर कर देंगे बात आराम से। नहीं यस भी नो कर दें तो उससे बेहतर है ना, सारा कुछ तो मेरे साथ ही करना। होटल आमद के मौके पर सरफराज अहमद के एक हाथ में कुरान था जबकि वो गोद में बेटे को भी लिए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सेल्फी भी बनवाई और फिर बेटे को लेकर होटल में दाखिल हो गए। FC कश्मीर की टीम ने वियना में मकामी टीम के खिलाफ फुटबॉल मैच जीत लिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अकरम बाजवा की रिपोर्ट देखिए। सेहतमंद मुआशरा वहाँ जन्म लेता है जहाँ स्पोर्ट्स को अहमियत दी जाती है। वियना में FC कश्मीर फुटबॉल क्लब और क्रोएशिया फुटबॉल क्लब के दरमियान वियना फुटबॉल लीग का फाइनल मैच वियना के मकामी फुटबॉल ग्राउंड में खेला गया, जो FC कश्मीर ने 2 के मुकाबला में 4 गोल से जीत लिया। FC कश्मीर की टीम जब मुखालिफ टीम के गोल की तरफ बढ़ती तो पाकिस्तानियों का जोशो खरोश देखने को मिलता। FC कश्मीर फुटबॉल क्लब ने जब 2 के मुकाबला में 4 गोल से मैच जीता तो ग्राउंड में खिलाड़ियों ने जबरदस्त जश्न मनाया और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। FC कश्मीर की इंतजामिया आतिफ रजा और FC कश्मीर के कप्तान चौधरी हारून रशीद ने जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। अकरम बाजवा, जियो न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। बेल्जियम की अफ्रीकी कम्युनिटी ने अफ्रीका और यूरोप में बिजनेस को फ़रोग़ देने के लिए ब्रसल्स में मीटिंग का एहतमाम किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम डार की रिपोर्ट देखिए।
बेल्जियम की अफ्रीकन कम्युनिटी ने अफ्रीका और यूरोप में बिजनेस को फरोग देने के लिए अफ्रीका यूरोप बिजनेस मीटिंग का इख्तिताम 5 स्टार होटल स्टेनबर्गर में किया, जिसमें पाकिस्तानी निजात बेल्ट ब्रसल्स के पुलिस एडवाइजर मोहम्मद नासिर को बतौर चीफ गेस्ट मदऊ किया गया। मीटिंग में मौजूद एशियाई लोगों से खिताब करते हुए मोहम्मद नासिर ने कहा कि जिस तरह ब्रसल्स में मौजूद अफ्रीकन कम्युनिटी बिजनेस के फरोग के लिए कोशां है, इसी तरह हमारी एशियन कम्युनिटी को भी चाहिए कि अफ्रीकन कम्युनिटी की तकलीद करते हुए एशिया से बिजनेस डेलीगेशन को बुलवाएं, जिससे एशिया और यूरोप के दरमियान बिजनेस को फरोग मिलेगा। There are a lot of opportunities for business and for investment and for tourism also. एशियन लोग, पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग इस तरह की बिजनेस मीटिंग करें तो इससे हम यूरोप और एशिया के दरमियान बिजनेस ब्रिज डेवलप कर सकते हैं। It has been great. We learned a lot from the panelists. People who are to share their experience on how they expanded in Africa. Mr. Nasir is a very good ambassador for all Asian community here in Brussels, and I'm happy to see you today. I'm happy to talk in the Pakistani TV. We should replicate with other communities such as Asian community, but based on what I saw today, it's just amazing how we can work अफ्रीकन together. यूरोप मीटिंग की तरह एशियन यूरोप मीटिंग्स वक्त की अहम जरूरत है। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.